So students, now we'll take this case of magnetic moment due to current carrying wire in a loop. What we can say, any current carrying loop, it can be in the shape of circle, square, rectangle or any shape. Any current carrying loop will always behave like a magnetic dipole. उस loop का जिसमें करंट फ्लो कर रही है, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं, इफ वी रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सेंस ऑफ करंट, thumb is associated direction of magnetic field, that is also the direction of magnetic moment. मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द लूप विल बी कंसीडर्ड. इट इज लाइक दैट. एंड देयर इज वन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो जो लूप होगा का फॉर्मेशन, लूप के सेंटर से जस्ट अबव इफ इट इज नॉर्थ पोल, तो जस्ट बिलो देयर विल बी साउथ पोल. तो दिस वे इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. ये पैटर्न हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे. तो व्हाट आई एम सेइंग, मैग्नेटिक डाइपोल, हाउ इट हैपेंस. तो मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम देखते हैं, व्हाट आई से कि दिस इज फॉर एनी करंट कैरिंग लूप. एनी करंट कैरिंग लूप हमारे पास अगर है, तो सपोज आई से अरेंजमेंट इज लाइक दिस, एंड इज द सेंटर. इस लूप में इट हैज द रेडियस आर and is having some current I. Some current I is flowing through the loop. So this loop, say it is a closed one, and this is the front, this is the back. Correct? Radius is R. So this current carrying loop will behave like a magnetic dipole. ये कैसा behave करेगा? Magnetic dipole जैसा. तो just above it there will be the magnetic field lines. They are going like this along the axis. These are the field lines. The field lines are going like this way, and along the axis here the maximum. The length of the line is straight. Otherwise, just in the surrounding, if I find, so these field lines are like this, they will form a loop arrangement. Correct? आप ये देख सकते हैं कि for any wire, say the circular shape, यहाँ पे there will be the so many magnetic field lines. तो associated this current carrying loop will have some magnetic field lines here, and all these magnetic field lines they will form a closed loop. They will always form a closed loop. So what I can see, just above the center, if the field lines are going away, right hand thumb rule, so just above the center here, if I say there is a north pole, so below the center there will be a south pole. At the south pole field lines enter, and at the north pole field lines they come out. So this magnetic dipole behavior will happen. तो कोई भी करंट करिंग लूप जो होगा, इफ आई ड्रॉ इट और ऐसे शेप में मैं इसको ले जा रहा हूँ, पतला कर दिया इसको. What I say, this is the center. So just above it, you can assume a north pole, and just below it there is a south pole. And this is a horizontal ring, and in this horizontal ring there will be so many field lines. So these field lines are associated like this. Along the axis जो होगा वो field जो होगी आपकी बिल्कुल straight जाएगी. This will be straight, and rest of them they will form a closed loop formation. Correct? जो मैंने वहाँ भी draw किया था. All these field lines they will form a closed loop. Hence, if I say the magnetic moment associated here, so this magnetic moment M is current into area of loop. So current into area of loop will be the magnetic moment. Correct? And it's a vector quantity, and right hand thumb rule says that I have told you. That thing we can do. And this magnetic moment here, if I say it is a circle, so it is I into pi r square. I into pi r square, that will be the magnetic moment along the axis of loop. ये चीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते थे. दिस लूप कैन बी इन अदर शेप ऑल्सो. हैड इट बीन द शेप ऑफ स्क्वायर, तो साइड लेंथ इज ए, तो करंट आई इंटू ए स्क्वायर ना. एनी ऑफ द शेप इट कैन हैव. और मैंने यहाँ पे फ्रंट पे करंट इधर जा रही है, एट द बैक डॉटेड लाइन इज शोइंग इट इज गोइंग बैकवर्ड लाइक दिस. तो राइट हैंड थंब रूल से इस चीज को हम डिफाइन कर पाते. करेक्ट? एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. नाउ इफ we go for the vector resultant, it can also be if there is a magnetic moment M1 this way, other magnetic moment M2 is in this direction, and they are at an angle theta. The resultant also I can find, the resultant M can also be found like this. So this M will be, just you see it, under root of a square plus b square M1 square plus M2 square plus 2 times M1 M2 into cos theta. You can find out the magnetic moment at their vector resultant. That way we can see these two loops can be arranged ना in any shape. See, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और अरेंजमेंट लेता हूँ, say like this.
ये लैपटॉप अरेंजमेंट मैंने दे लिया एंड से इट इज कैरिंग करंट आई, current I is flowing through this, all the sides are of side length A, so current is flowing like this way, fine. Now along the junction of the two planes I can see this current is going this way and the top loop, इसका जो loop है इसका current इधर आ रहा है. On the common line of two planes, if they are at an angle theta, what I will assume, on the common line of two planes it will cancel out, the current flow will cancel out, so I can neglect it like this. And initial magnetic moments I can see the current is I, it will have some magnetic moment here, correspondingly मान लो मैं इसको M2 लिख दिया और इसका magnetic moment कुछ आ जाएगा, say it is M1, तो this M1 M2 they are at an angle theta, जैसे लूप के बीच का एंगल थीटा आ रहा है ऐसे M1 M2 they will also be at an angle theta, meaning that ये दो प्लेन है इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा. से आई एम पुटिंग दिस पेन, इफ आई एम सेइंग ये एक का परपेंडिकुलर है तो ये दो प्लेन मेरे हाथ हो गए तो परपेंडिकुलर के भी बीच का एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा. दैट थिंग आई कैन डू. हियर आई कैन सी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट दैट विल बी अंडर रूट ऑफ से बोथ आर वैल्यू m, तो m स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos theta, this thing I can do. And here one more thing I can say, this कोई एक m1, say I am taking this as m1, m1 is current flowing is I into a square, a is the side length of this square element, ठीक है. तो this way magnetic dipole moment for any of the current carrying loop we can take, and always it is the vector sum, it can be combining 1 2 3 or any of that, इन सबका हम क्या करेंगे, हमेशा वेक्टर सम ले लेंगे, always this value will be correct. Some questions have been asked और उसको हम ऐसे देख सकते हैं. जैसे मान लो one more case I take कि से a circular any circular loop is folded, मैं यहाँ पे ऐसे मान सकता हूँ कि कोई सर्किल है, कोई ऐसी अरेंजमेंट है जैसे कि ये मान लो कि हमारा ये है शेप, ये मैं टिल्ट कर दिया ऐसे, जो लैपटॉप वाली बात मैं कर रहा था, तो ये दोनों का एंगल के बीच का एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल से दो प्लेन के बीच में इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग देख सकते हैं. इवन इट कैन बी टेकन इन द शेप ऑफ सर्किल, सर्किल के शेप में भी ये हो सकता है, करेक्ट. लाइक दैट इफ आई से देयर इज दिस सर्कुलर अरेंजमेंट और ये आपका फिगर ऐसा कुछ आ गया एंड इज द सर्किल, हाफ सर्किल इज दिस, अदर हाफ इज दिस एंड दे आर एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ भी इनके मैग्नेटिक मोमेंट को मैं बना सकता हूँ, दे आर टिल्टेड, एक ऊपर हाफ का है लोअर हाफ का है, ईच ऑफ देम मैग्नेटिक मोमेंट से m1 इक्वल टू m की वैल्यू I can say I into pi r square by 2. सेकेंड वाले इसका भी जो केस आएगा that also I can say there the magnetic moment m, it is I into pi r square by 2 and they are at an angle theta, so I can get the resultant value. बीच की जो कॉमन लाइन होती है इस पे जो करंट होती है they get cancel out, तो उसका भी हम इम्पैक्ट देख सकते हैं. तो दिस वे एनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ये रिजल्ट हमारा पैटर्न बनेगा फॉर एनी करंट करिंग लूप. अब ये तो हो गया इफ देयर इज ए करंट फ्लोइंग इन द लूप ना, और इन द सेम it can be in the shape of circle and other things. There is also magnetic moment due to motion of charges. So due to circular motion of charges or motion of charges, they also create a current. I will say magnetic moment due to motion of charges in a closed figure, in a closed figure. How this magnetic moment happen due to motion of charges in a closed figure, ये भी आप अरेंजमेंट ऐसा देख सकते हो. How does it happen? You must have gone through that thing कि any electron is moving in a circular orbit, s orbit, spherical shape. तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिट में स्फेरिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल ऑल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक मोमेंट. तो सपोज आई से दिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v and it has some radius r, correct, charge is E and it's moving with velocity v, ये velocity v हो गई and charge is E. If it is moving like this, it can be having some its magnetic moment, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं. इसका magnetic moment देखोगे आप along the axis ऐसे कुछ आ सकता है. See, if it is negative charge तो magnetic moment positive charge होता तो ऊपर होता, here magnetic moment will be downward because charge of the motion is negative. तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से मैं कर रहा हूँ, for electron motion magnetic moment will be in the
डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से, करेक्ट, ये आ जाएगा. एंड फर्दर इफ आई हैव टू सी द इफेक्टिव करंट, आप देख लो तो करंट हियर आई विल सी E अपॉन टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड यू विल टेक इट एज 2 पाई बाई ओमेगा. You can also say it is 2 pi r circumference upon speed. This value we say, and V upon R I can take it to be equal to omega. तो ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो 2 pi by omega. Hence, once I have this current value, I can have the magnetic moment I. तो I is your E upon time period. Time period is 2 pi by omega. It is the current into pi r square. So this will the magnetic moment associated with current for charge motion. यानी सिंगल चार्ज जो है सर्कुलर पाथ में गया इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आएगा, एंड द डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड. दिस डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड फॉर दिस थिंग, करेक्ट. फर्दर अगर आप देखो तो दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट, E इंटू ओमेगा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर. दिस वैल्यू वी गेट ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे ऐसे मिल जा रहा है. मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, m लिखते हैं. Sometimes this m is also written as mu. It is also mentioned. So both formulas are correct. Either I write m or mu, both are correct. Now for the electron, if I say it has the mass m, आप देखें due to mass m, it will have its own angular momentum due to mass and rotation effect. That I will say it is I into omega. If I relate this, so this moment of inertia is I dash. I am writing because I am writing for current. I dash की वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन बोथ वी कैन रिलेट. इट इज फॉर मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट इज फॉर एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट. ये दो इक्वेशन है. अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो देखो जरा m बाई एल, इफ आई रिलेट दिस टर्म m बाई एल, व्हाट आई विल गेट, E ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, E ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, and L is m r square into omega. If I see these two terms, so what I will get, E by 2m, E upon 2m. For the charge q, I can also write it as q by 2m. तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ना. मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, दिस रेशियो इज कॉल्ड जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, ऑल्सो इट इज कॉल्ड, करेक्ट. तो ये टर्म आपको यहाँ पे क्या देता है, दिस रेशियो इज q बाई 2m. ये बड़ा अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट को कभी भी, इफ आई हैव टू रीड दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू q बाई 2m ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज दे कैन बी रिलेटेड विद दिस रिलेशन फॉर चार्ज एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर चार्ज q एंड मास m, this magnetic moment and angular momentum they can be correlated. Just see L is what, angular momentum. L क्या है यहाँ पे, it is called as angular momentum. इससे हम लोग ये रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो मास की वजह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ये रिजल्ट आ गया. तो दिस रेशियो इज ऑल्सो कांस्टेंट प्रोवाइडेड द मास एंड चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम पैटर्न, करेक्ट. और ये रेशियो भी हर जगह कई बार यूज किया जाएगा, ओके. अब for the same charges distribution, I say, suppose I say the magnetic moment I have to calculate due to rotation of charges on a disk. If charges are rotating on a disk, then what is this magnetic moment, वो भी हम लोग देख सकते हैं. Charges are rotating in a disk, uniform distribution. Suppose it's like this, and disk has a radius r, and charge q is uniformly distributed on the surface, correct. It has the charge q and radius is r, mass is m, correct. इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग. वन इज ड्यू टू करंट इनटू एरिया ऑफ लूप, वहां से भी मैं कर सकता हूं. इफ आई यूज दैट मेथड प्राइमरली, तो व्हाट आई विल से, एनी आर्बिट्रेरी चार्ज रिंग of radius x and extension dx I can take, and charge it will have dq. For dq charge, if the magnetic moment dm I am writing, so what it is, current will be dq. It is rotating with omega, it is mentioned, correct, omega is given. So dm magnetic moment will be the dq charge upon time period t is 2 pi
by omega, correct? So this is the current value into area of the disk enclosed, that is pi x square. If I integrate this, you will get the result. Now the dq charge, I will say what it is, charge per unit area, charge upon area of the disk radius was r, so pi r square into small area of the ring arrangement, it is 2 pi x into dx. So these two equations I can use and solve. If I write this, so further integration, what I will get, value of m is, just see dq is q upon pi r square into 2 pi x dx, this value, this for dq, into omega upon 2 pi into pi x square. This thing I have to integrate. Simply integrate, and dx value I am going from 0 to r, you will get the result. Let us see how many factors they are getting cancelled out. Just see pi, दो pi नीचे हैं तो pi and pi they got cancelled out. Okay. Further what I get, this 2 and this 2 again it is getting cancelled out. So what I am getting here, q upon r square, just see q by r square, this term, and x square, x into dx, omega times integration of x cube dx, this thing I have to see. This will give the value of matic moment. The x cube dx you can integrate, it is x to power 4 by 4, hence this result is 0 to r. If you are integrating, it is q omega by r square, and it is x to the power 4 by 4, is going from 0 to r, hence this value is q omega r square by 4. So this is the matic moment due to charge on the disk. ये रिजल्ट आपको मिल गया. I have given the proper value with the mathematical element, how it is taken. So q omega r square by 4, that is the matic moment due to charges uniformly distributed at the boundary of disk. ये चीज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली ना, ये मैटिक मोमेंट आ गया. Can I do the same thing with the help of q by मैटिक मोमेंट रेशियो? तो लेट अस सी. तो ये हमने पहले क्या बात चुके हैं, q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4. इस डेटा को हम लोग याद रखते हैं. Next, I will try to do the same question with the formula. Same disk if I take, and this disk has the charge q uniformly distributed. It has the charge q, mass m, and radius r. Okay. I will say the magnetic angular momentum L is I into omega. So moment of inertia of the disk is mr square by 2 into omega. Correct. So magnetic moment m, that I will say q by 2m into angular momentum L. If I write this, so what I will get, just see q upon 2m, and this is m omega r square by 2. If you write this, the result is, just see q omega r square by 4. I am getting the same formula. Means this distribution of charges for this formula is always correct. What? M is equal to q by 2m into angular momentum. तो आप इसको याद रखिएगा, कैपिटल M फॉर मैटिक मोमेंट. तो दिस फार्मूला इज इक्वली ट्रू फॉर डिस्क, और डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम था उससे ये फार्मूला फिर से सही हो जा रहा है. ठीक है. तो फॉर एनी ऑफ द केसेस दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर द मैटिक मोमेंट. तो आप देखिए, दिस इज वेरी गुड थिंग. से आई टेक अ रॉड, other example I am taking, say it's a rod rotating about one end with certain omega, and charges are distributed in the length of rod. Say charge is q and length is l and mass is m. Correct. I will not integrate क्योंकि integrate मैंने एक बार कर दिया, but both the options are always correct. And if you are applying the formula, तो you have the convenience कि you already know the moment of inertia and angular momentum. Say it is rotating with omega, तो I will say the magnetic angular momentum मास की वजह से जो होगा, दैट इज आई इंटू ओमेगा. आई फॉर द रॉड इज, फॉर दिस केस इज ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा. सो फॉर दिस केस मैटिक मोमेंट, इफ आई हैव टू राइट, इट इज q by 2m into angular momentum. Angular momentum L, I will write it as m L square by 3 into omega, and this value m you will get it as, just see q by 3 into 2. Correct. And mass got cancelled, it is L square into omega. So what it is, q by 6 into L square into omega. ये चीज आपको मैटिक मोमेंट मिल जा रहा है. Even you can do it with the help of integration.
बट ये फॉर्मूला हमारा काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। करेक्ट, ये चीज़ आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। वन वेरी इंटरेस्टिंग केस हियर हैपेंस कि अगर charge and it is distributed in the sphere. Suppose it is a solid conducting sphere. Solid conducting sphere. If it is solid conducting sphere, then what could be the magnetic moment here due to rotation effect? All that we can see. Say the charge is uniformly distributed. In the solid conducting sphere, how the charges will be distributed? Will they be distributed along the volume? Conducting sphere? For the conducting sphere charge distribution, how it will go? No, it will not be not in volume. Charge is not in volume. चार्ज होगा कंडक्टिंग स्फीयर में, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. Q is not in volume. Total Q net is not in volume, but कहाँ होता है? At surfaces. क्योंकि कंडक्टिंग है तो चार्ज विल गो ऑन द सरफेस. Here I will say that for the charges are distributed conducting sphere में at the surface and say the mass m is there. So what I will do, we will take moment of inertia as per the charge distribution. तो आपका जो solid conducting sphere है, भले ही solid है, तो यहाँ पे मैं इसका magnetic moment क्या लिखूंगा? Say mass is small m and radius is r and charge the whole here is q. तो magnetic moment देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ? This is q by 2m into angular momentum. Angular momentum I ओमेगा जो मैं लिखूंगा इसका I as per the charge distribution. तो हॉलो स्फेरिकल शेल वाली चार्ज हो गई तो क्या होगा? 2/3 m r². देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई मैंने लिया फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप याद रखिएगा. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस के हिसाब से हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं. है दिस m विल बी, इफ आई राइट, तो व्हाट यू विल गेट? q/3 into m r². ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि वेन एवर देयर इज ए केस कंडक्टिंग एंड लाइक दैट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखते हैं, जबकि इवन दो मास वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल वॉल्यूम. ये आप रिजल्ट ध्यान देंगे. कहने का मतलब है कि कंडक्टिंग में तो मैं ये बता दिया. हैड इट बीन नॉन कंडक्टिंग, यहां तो क्लियर है. हैड इट बीन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, से इट वाज द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, देन व्हाट वी कुड हैव डन. और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता, इस रिजल्ट को हम कैसे ले जाते वो देखो. तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा? योर मास एंड चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम पैटर्न लाइक न्यूक्लियस ना. तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर आप जाते हो एंड यू फाइंड द सेम ऑल द थिंग्स, रिजल्ट हाउ यू विल गो? जस्ट सी, द रेडियस इज आर, मास इज एम, रोटेटिंग विद ओमेगा. ठीक है, अब आप देखोगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, it is q by 2m. Now I will take the moment of inertia ना as per the mass and charge both are in volume. तो ये होगा moment of inertia होगा 2/5 m r² into omega. This thing I will put. So magnetic moment here, if I see, it is q by 5 mm also got cancelled into r² into omega. तो ये रिजल्ट आपको ध्यान देना हो. This way we can find out the moment of inertia of all the bodies, and this moment of inertia is always associated along the axis. तो मतलब ये जो एक्सिस होता है इधर इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा फॉर द पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस. had it been negative charge, तो this moment of magnetic moment will reverse the direction, will go downward. So this way for any charge distribution or current carrying loop we could see the moment of inertia and then the magnetic moment and angular momentum. इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं और उसको हम लोग देख सकते हैं एनी ऑफ द केसेस. करेक्ट. नेक्स्ट, once we have this magnetic moment, any current carrying loop will always experience some torque. So torque on current carrying loop, that also we can get torque on current carrying loop. This thing also we can see. Now, any current carrying loop will experience torque on current carrying loop in external field. ध्यान देखिएगा, this field has to be external, not of the current carrying loop itself. तो ये आपको external field वहां पे present होगी, then we get this torque effect. How does it happen? And all pattern we can see.
जस्ट सी, मान लो मैं कहता हूँ आई हैव अ लूप लाइक दिस, स्क्वायर लूप, एंड दिस स्क्वायर लूप हैज the arrangement like this, carrying current I and side length is A. Correct. I will say as per the right hand thumb rule, matic moment is outside. You rotate the fingers of right hand, matic moment is outside. So matic moment I will write I into A square, and I will say the matic moment is outside. Circle with a dot. This is matic moment outside for this loop. And suppose I say there are some matic field lines present. These are the external field lines which are present. आप ध्यान देंगे, these field lines are external and I was this, these field lines are this. What you find, the matic moment M and this field line they are at 90 degree because M is outward, बाहर की तरफ M, and this B they are at 90 degree. So torque, how it will happen, the torque is M cross B, M cross B1, B1 is the external field, क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आपने उधर मैटिक मोमेंट टॉर्क देखा था डाइपोल मोमेंट पे, द सेम वे वी हैव डन अर्लियर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट वाज P क्रॉस E. द सेम पैटर्न हियर वे आर फॉलोइंग, मैटिक मोमेंट M क्रॉस B से, rotate fingers of right hand from M to B, from M to B if you are rotating will get the effect, it will have the tendency to rotate like this, ये ऐसे घूम जाएगा, तो this section will come out, this end will come out and this will go in, ये अंदर जाएगा, तो ये आपका ऐसे रोटेशन की टेंडेंसी, ये फ्लैप बाहर आएगा ना, तो ये टेंडेंसी आप देख सकते हो कि ये इधर से रोटेट करके अंदर चला जाएगा, तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इफ आई से विद द पेज, तो आप ऐसे मान सकते हो, ये लूप था, ये यहाँ पे ऐसे रखा गया, तो ये ऐसे रोटेट, ये बाहर आ रही है एंड दिस इज गोइंग इनसाइड, तो ये आपका अरेंजमेंट आएगा. एंड एक्सियल वेक्टर वी नो द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, the torque is along this and ये tendency आएगी. तो initial torque if I have to say, I will say that this matic moment is I into A square into B1, this is the torque. Torque can this is the torque. ये हमारा क्या है, torque है. तो torque की वैल्यू आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करती हुई मिलेगी, तो torque is I into A square B1 sin 90 degree because initially they were at 90 degree. तो ये torque की वैल्यू क्या होगी, देखिए I into A square B1. Now this torque has the tendency to rotate. If I say each end of the rod, each line side of the rod is having mass M and length A, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हो. तो दिस टॉर्क की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये मैं लिख दिया तो दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके हिसाब से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई डैश लिखता हूँ इंटू अल्फा से, आप देख सकते हो आई डैश इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई डैश आई एम सेइंग द मोमेंट of inertia of this arrangement ना, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. If I have to write the moment of inertia I dash, that also you can write. What I will say, ये दो रॉड्स हैं, ये 20 से पास करा था ml स्क्वायर बाई 12, m a स्क्वायर बाई 12, और दो लोग हैं तो इंटू 2 कर लो, दिस रॉड एंड दिस रॉड, दिस टू रॉड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस a बाई 2 पे, तो उसका क्या आ जाएगा m इंटू a स्क्वायर बाई 4, ऐसे दो लोग हैं, तो ये moment of inertia I dash happened. If I put the I dash, you will get the value of angular acceleration also. So this formula I can apply. So what the initial angular acceleration it can have, that result also can be obtained. एक तरीका है मैटिक मोमेंट को और अल्फा को जानने के लिए, रोटेशन इफेक्ट, हाउ डज इट हैपन इन द स्क्वायर लूप दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. करेक्ट. एंड थीटा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मान लो यहाँ पर हमने देखा था थीटा वाज 90 डिग्री. सपोज आई से द सेम लूप and it is placed like this. आप ध्यान दें, the loop is like this and see current is flowing this way, side length is A and current is I, and this loop is present. See, it has the matic moment outward, but if I say somewhere the matic field B1 is inside, suppose I say B1 is inside the loop, यहाँ पे आपका जो B1 फैक्टर आ गया वो inside the loop है. Now what will be the matic moment if I have to see? आप देखें matic moment is this and B1 is inside, the torque क्या आएगा? Here the torque if I have to see, the current into A square is the matic moment and B1 see देखिए M is outward and B1 is inside into B1 into sin 180 degree. If I relate these two terms, what I get? It will be 0. So there has to be the angle not 0 or 180 degree for positive torque effect.
इस केस में इस पे टॉर्क क्या आ जाएगा 0 बिकॉज मैटिक मोमेंट इज आउटसाइड एंड बी इज इनसाइड, तो थीटा हैपन टू बी 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0, तो ये 0 भी आ सकता है, करेक्ट। नाउ द सेम वे सपोज आई से दिस ए ट्रायंगुलर फिगर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज कैरिंग करंट आई लाइक दिस ना, और यहाँ पे आप देख लें से करंट इज आई एंड साइड लेंथ इज ए, equilateral triangle. It is present in some magnetic field and suppose here I apply the magnetic field like this. Magnetic field कुछ ऐसी है, present है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? Magnetic field is like this. The magnetic field B1 and current carrying loop ये arrangement कुछ ऐसे आ रहा, side length A है. How does it rotate? If you see the magnetic moment is outside and B1 is this, तो आप देखो M cross B, right hand thumb rule, rotate the fingers of right hand, तो torque is M cross B, M cross B1. Rotate fingers of right hand from M to B, you will get the direction of axial vector. Here if I say the magnetic moment is outside and B is this, तो M cross B से thumb ऊपर जाएगा, it will have the tendency to rotate like this, ऐसा sense आएगा, तो this end is going to up and this end will go inside, this will go inside the page and this will come outside the page, this will happen, correct। तो यहाँ भी हम लोग इसका रिजल्ट देख सकते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया हो गया √3/4 a स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनटू B1, दिस इज टॉर्क इनटू साइन 90 डिग्री एंड दिस विल गिव I अल्फा, I डैश इनटू अल्फा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द दिस ट्रायंगुलर रिंग इनटू अल्फा से आप रिजल्ट पा सकते हो, एंड I डैश फॉर दिस यू कैन इजीली सी I डैश द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 3 रॉड्स फॉर्मिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच ऑफ द साइड लेंथ ए, तो आप किसी एक साइड इसका देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज m L²/3 साइन स्क्वायर थीटा, दिस थीटा इज 30 डिग्री, दिस थीटा इज 30 डिग्री फॉर द एक्सिस, mL²/3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/4, ऐसे दो लोग हैं, दिस रॉड एंड दिस रॉड इंटू 2 कर दो, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 2 रॉड्स। इसका आप देख लीजिए, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोअर बेस रॉड का ma²/12, तो प्लस ma²/12, तो दिस इज द moment of inertia I dash I have found. So using moment of inertia and this term I can find out the angular acceleration. ये भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। Even I tell you this, once the this starts rotating, तो थीटा बदलता जाएगा, शुरू में टॉर्क मैक्सिमम है, अदर प्लेसेस पे थीटा विल गो ऑन डिक्रीजिंग, तो ये 90 डिग्री से घट के 0, फिर 180, फिर से -90, लाइक दैट इट विल गो। तो सारे पैटर्न को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। द सेम वे द टॉर्क इट वाज हैपनिंग फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, तो ये रिजल्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाउ टू सी दिस मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क एंड दे आर इंटर रिलेटेड। वंस इट इज लाइक दिस, तो दिस मैग्नेटिक डाइपोल एंड टॉर्क दे विल आल्सो क्रिएट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वी आल्सो हैव द केस ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनी करंट कैरिंग लूप इट विल आल्सो हैव दिस केस ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी डिफाइन किया जा सकता है व्हाट दिस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ना, तो वो क्या होगा फिर से, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो यू मैग्नेटिक इफ आई हैव टू सी इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ना अरेंजमेंट में, तो मैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव वर्क डन जो होता है वही रिजल्ट यहाँ पे लिया जाता है। And here the work done I am taking for the torque effect. So what it is, minus of tau dot d theta. इसका वैल्यू हम इंटीग्रेट करते हैं and for the results how it go from 90 डिग्री to some angle theta, यहाँ तक आप इसको ले जाते हैं। और टॉर्क आप जा ही चुके थे, तो दिस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को आप देखना चाहते हैं, तो वर्क डन का नेगेटिव होता है, दैट इज यू मैग्नेटिक, नेगेटिव ऑफ वर्क डन में फील्ड फोर्स, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इफ टॉर्क आई राइट m क्रॉस b, m b साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क। टॉर्क एंड डी थीटा अगर देखोगे, टॉर्क एंड डी थीटा दे आर एट 180 डिग्री। आप कभी भी देखेंगे टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट जब भी ये आएंगे तो दे विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज द टॉर्क एंड डी थीटा। तो टॉर्क जो होता है ये डी थीटा से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आता है। जैसे अभी हमने देखा था शुरू वाले केसेस में भी क्या, आइदर इन द ट्रायंगल एंड ऑल, तो
तो टॉर्क की टेंडेंसी होगी थीटा को डिक्रीज करना। से मान लो हियर आई वाज टेकिंग द ट्रायंगुलर फिगर, इट वाज रोटेटिंग। तो आप ध्यान देंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट शुरू में बाहर था, एम वाज दिस एंड फील्ड लाइंस वर देयर। तो शुरू में इसका जो थीटा था, थीटा इनिशियल वाज 90 डिग्री। वंस इट विल रोटेट, तो ये देखो बाहर जाएगा, अंदर चला जाएगा ये। तो थीटा विल गो, थीटा विल डिक्रीज। ये जो था इट विल फ्लैप विल कम लाइक दिस और बी की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा ना। ये ट्रायंगल जो होगी ये बाहर आके 90 डिग्री पे ऐसे आ जाएगी, तो थीटा डिक्रीजेस। तो एम और बी जो होता एम और थीटा जो डिस्प्लेसमेंट आता है यहाँ पे, दे आर एट 180 डिग्री। एम और थीटा में आप ध्यान देंगे, व्हाट आई एम सेइंग दैट मेजर्ड एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आई विल से हियर डी थीटा के लिए जब मैं फर्दर लिखूंगा तो आई विल राइट इट एज एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री फॉर द एंगल। एंड दिस इज निगेटिव वर्डन, तो निगेटिव कर लीजिए, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दिस विल द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट पोटेंशियल एनर्जी आई विल गेट, जस्ट सी दिस माइनस, दो बार माइनस तो प्लस हो गए, और डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, तो इट इज माइनस एम बी कॉस थीटा। तो माइनस एम बी कॉस थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी अरेंजमेंट। कभी भी कोई दो अगर मान लो थीटा इनिशियल में 90 डिग्री रखता हूं फॉर एनी वैल्यू थीटा, तो इट इज द जनरल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। ये रिजल्ट ऐसे आपको आएगा, जनरल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इट गोस लाइक दिस। ठीक है ना, ये रिजल्ट आएगा। इफ आई पुट द टर्म्स फ्रॉम अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे मैं डाल सकता हूं, तो व्हाट आई विल से इट इज एज माइनस एम बी ना, और ये वैल्यू क्या आएगी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, ये रिजल्ट मैं कह सकता हूं। फर्दर इफ आई सी कॉस 90 0, तो दिस वैल्यू इज योर माइनस एम बी cos theta. तो potential energy is this arrangement. तो potential energy for magnetic dipole it is minus mb cos theta as the function angle theta पे ये रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये टर्म आप याद रखेंगे, u इज टू क्या हो गया माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा। हेंस आई विल से दैट u इज टू माइनस एम डॉट बी। The similar pattern we have done for electric dipole. So what it is for electric dipole, the same thing happens for magnetic dipole also for the field. तो आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे हमने लिख लिया। थोड़ा सा ये 180 डिग्री क्यों होता है, इसको मैं थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल डू इट, लेट अस सी हम कैसे इसको कर पाते हैं। थोड़ा मैं इसको मैग्नेटिक डाइपोल से एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज इट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। थोड़ा ध्यान देंगे, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसा नॉर्थ पोल बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज इज दिस। एंड सपोज द फील्ड लाइंस आर समवेयर हियर, these are the field lines। अब आप देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल इज आल्सो दिस अरेंजमेंट, m इसका इधर जाएगा, तो दिस इज m एंड दिस इज b। इफ इट इज प्लेस्ड लाइक दिस, तो आई से द नॉर्थ पोल बेस लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, in external field the force magnetic will act like this. Here the magnetic force opposite to field, it will go like this. Due to these two forces, the dipole about the center force into perpendicular distance, it will have the tendency to rotate like this. So this is the torque. Torque is acting like this, and m और b के बीच में theta was this. If you see the torque and theta, they are opposite in direction. So this tau try to decrease theta. ये थीटा को क्या करता है, घटाता है। तो थीटा घटाता है मतलब कि देखो बोथ सेंस, दिस थीटा इज आउटसाइड एंड टॉर्क इज इनसाइड, तो हियर थीटा इज 180 डिग्री, वो मैं एक्सप्लेन किया। इवन दैट इज ट्रू फॉर द लूप आल्सो ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जो मैं लिखा था, फर्दर आई विल एक्सप्लेन दिस मैग्नेटिक मोमेंट m फॉर पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच मैग्नेट इज m, और इनटू L डैश इज द मैग्नेटिक लेंथ। नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का जो गैप है उसको हम L डैश मानते हैं। इफ इट इज टेकन एज L डैश, द गैप L डैश बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो I say it is slightly less than the physical length. L dash is called magnetic length of dipole, magnetic length of dipole. This thing also you can see.
So here the magnetic moment I write it as m into L dash, where geometrical length is end to end boundary. ये end to end जब होता तो geometrical length होता, but poles are slightly inside. I say that L dash by L, the ratio is 5/6. The magnetic length is slightly lesser than the geometric length. ये geometric length है. Geometric length is different end to end, but magnetic length is slightly inside. तो दोनों को अप्लाई करते हुए रिजल्ट पाएंगे. दिस इज 0.84 ना. ये रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं. दिस आई हैव एक्सप्लेन कि व्हाई टॉर्क एंड मैग्नेटिक मोमेंट दे हैव द अपोजिट टेंडेंसी लाइक दैट. तो ये आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो. करेक्ट. फॉर एनी मैग्नेटिक डाइपोल, स्ट्रेट डाइपोल, कोई भी मैग्नेट आपने देखा होगा, उसमें टू एंड्स आर देयर एंड दे हैव द पोल स्ट्रेंथ. स्मॉल m इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ. आप ध्यान देंगे व्हाट आई सेड, इट विल हैव द स्मॉल m, इट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ इसको हम लोग कहते हैं. एंड नॉर्थ पोल बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव चार्ज. मतलब फील्ड लाइंस जो होंगी मैग्नेटिक डाइपोल में, इफ यू हैव टू सी ना, आई विल से फॉर एनी मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं एंड दे टर्मिनेट एट साउथ पोल. देखो लाइक दिस इज द साउथ पोल. नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी एंड दे विल टर्मिनेट एट साउथ पोल. करेक्ट. ये पैटर्न आप देख सकते हो. नेक्स्ट, वंस वी हैव दिस वैल्यूज एंड एनर्जी, इसको थोड़ा सा मैं कोरिलेट करूं तो आई विल से यू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वाज माइनस एम बी कॉस थीटा. नाउ आई विल हैव द थ्री पैटर्न्स फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू विल बी माइनस एम इंटू बी. जस्ट सी फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दिस यू विल बी कॉस 180 -1, दो बार -1 प्लस हो गया तो प्लस एम बी. करेक्ट. फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, यू सी द पोटेंशियल एनर्जी आर लाइक दिस माइनस एम बी प्लस एम बी. So this is the maximum potential energy and this is minimum potential energy. Both the patterns we can see, one for maximum, other for minimum ना. यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या आएगा, when the energy is maximum, तो इस केस में जो टॉर्क आएगा, टॉर्क इज एम बी साइन 180 डिग्री, तो टॉर्क इज 0. इवन यहां भी देखोगे तो इस वाले केस में भी जो टॉर्क आएगा दैट इज एम बी साइन 0 डिग्री, इट इज अगेन 0. फॉर द टू केसेस व्हेन द एनर्जी इज मैक्सिमम और मिनिमम, टॉर्क इज 0. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दिस टॉर्क इज माइनस डी यू बाई डी थीटा ना. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं रिजल्ट को उधर ले जाता हूँ टॉर्क के लिए, तो टॉर्क में ये रिजल्ट आपका यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है ना. और टॉर्क वहाँ पे 0 हो जा रहा है फॉर साइन 0 एंड साइन 180 डिग्री. तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके आप टॉर्क की वैल्यू भी देख सकते हैं. ये भी रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिल सकता है कि इफ वी हैव द इंफॉर्मेशन सिमिलर टू दैट, देयर वी हैव डन द फोर्स. The force was minus du by dx for the dipole and all. The same way I say, if I have to read the torque, it is minus du by d theta. What does it actually say? The torque always tries to decrease the potential energy. Tries, ये जो torque आएगा ना, तो this torque, magnetic torque, always tries to decrease द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को ये घटाएगा ही. लाइक दैट द ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को घटाता है, ग्रेविटेशनल. ऐसे ही द टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क विल ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. वो पैटर्न भी आप यहाँ पे देखेंगे. एंड वेयर एवर द एनर्जीज आर मैक्सिमम एंड मिनिमम, योर टॉर्क वैल्यू विल बी 0. The third case I could have done here for theta equal to 90 degree, energy will be 0 and torque is maximum. ये in between आ सकता था. तो forces, energy and all how they are related, correct? तो ये पैटर्न आप कहीं पे भी देख सकते हैं for the energy. Next, once we have these values, some more cases of interest I can say. Suppose I say there is any dipole
सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक डाइपोल है, इसे लार्ज रिंग का, इस कैरिंग करंट I2, radius is R, and it has the magnetic moment in this direction, M2 is here, correct, like this. Say current is flowing like this way, एक large ring है. For this large ring, if I have another smaller ring, एक मेरे पास छोटा सा रिंग है अगर लाइक दिस, ये एक छोटा रिंग ले लो ऑफ रेडियस छोटा r, and is carrying current I1, correct, and it is at the planar angle between the two, they are at theta. तो इवन द मैग्नेटिक मोमेंट जो इनके होंगे, इनके बीच में भी एंगल थीटा आ जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा. तो दिस आर द टू रिंग्स, and these two rings they are in the angular positions this way for angle theta. एक plane में है और एक tilted है. The two rings are there. I can relate their potential energy and torque and everything. तब आप देख सकते हो यहाँ पे, if I have to see the torque U between them or torque between them, everything they can be related. How do I go for finding the magnetic potential energy and torque? तो अगर मैं potential energy की बात करता हूँ U, तो U में मैं क्या करूंगा, माइनस एम बी कॉस थीटा. आई विल टेक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बड़ा रिंग, तो बड़े रिंग की मैग्नेटिक फील्ड विल बी दैट इज B2 माइनस M1 B2 इंटू कॉस थीटा. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बड़ा रिंग का फील्ड क्यों नहीं लिया, मैंने लिया बिकॉज आई एम टेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वेल डिफाइंड इज ओनली इन द एक्सियल लाइन एरिया. तो हियर आई ऑल्सो एज्यूम स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर. आप एज्यूम कर सकते हो कि स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर. तो दिस थिंग आई कैन गिव द पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट इज दिस. नाउ यू सी B2 what will be mu naught I2 by 2R, this is the field along the axis, into M1. M1 is I1 into pi R square into cos theta. तो this is the value of magnetic potential energy of the arrangement. ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है, करेक्ट. दिस थिंग इज हियर. तो माइनस B2 M1, दिस करंट इज दिस, ये आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है. नाउ ड्यू टू दिस मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैं M क्रॉस B की बात करूं, तो M क्रॉस B अगर देखोगे, देखो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है M1, इट इज दिस, एंड B2 इज दिस. इफ आई रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड M1 टू B2, तो ऐसे जाएगा, इसकी टेंडेंसी है इधर जाने की. तो दिस फ्लैप फाइनली व्हाट इट विल डू, यहाँ पे जो टॉर्क की बात आ रही है, फाइनली व्हाट यू विल फाइंड दिस बड़ा लूप एंड छोटा लूप, दे विल बिकम फाइनली को-पैरेलल. ये फाइनली पैरेलल हो जाएंगे. And the current was going like this way, and it tilted, and here current is this. Both will come in this pattern. Finally, they are coming and becoming, for this stage, here theta becomes 0 degree. So what you will find here, the final potential energy of the arrangement, if they are rotating like this, so that is minus M1, it is I1 pi R square into M2 mu naught I2 by 2R into cos 0 degree. ठीक है. It is going more negative. तो potential energy is decreased. Less negative to more negative potential energy going for. तो potential energy घट गई और टॉर्क की टेंडेंसी भी वैसी ही आ रही है, करेक्ट. तो ये फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देख सकते थे. इवन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, तो आप यहाँ पे देख पाए दो एनर्जी जो था, तो एनर्जी की बात मैं कह पाया था, माइनस it is M1 B2 cos theta, and torque will be, torque also I can say, what is that, torque will M cross B. देखिए तो it is माइनस, इसमें माइनस की बात मैंने लिखा हूं M1 B2 sin theta. If I differentiate this term, d by d theta of cos theta is minus sin theta. So from differentiating that term we can get na M1 B2 sin theta is the torque, and this torque will try to make the two rings align and become parallel, try to bring them in the least energy state. One more interesting thing happened, the loss in potential energy. If I say here the change in potential energy delta U, that is U final minus U initial,
If I write like this, so what I will write here, just see, if I write it is I1 pi r square mu naught I2 by 2r ना, cos 0 डिग्री इज फाइनल और माइनस दिस, तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। फाइनली इट इज मोर नेगेटिव ना, तो -1 दैट इज -1 प्लस cos थीटा ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, द रिजल्ट इज दिस, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। यू फाइनल इस पोजिशन में ऐसा आ गया और शुरू में क्या था, ये था, तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया। पोटेंशियल एनर्जी चेंज से हम लोग क्या कर सकते थे, इट इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, गेन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग में चला जाएगा। तो वट एवर इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा इन दोनों रिंग्स में जाएगा। If the छोटा रिंग हैज लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लेसर रेडियस, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू, आई कैन से द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ रिंग्स, दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी distributed in inverse ratio of moment of inertias of two rings, इन दो रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। इवन मान लो कि एक को बहुत बड़ा मान लें, एक को बहुत छोटा मान लें, तो छोटे रिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी जा सकती है। दैट थिंग विल हैपन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल विल बी फॉलोड हियर। इवन द टॉर्क इज एक्शन रिएक्शन ऑन द बोथ द रिंग्स, नेट टॉर्क इज 0, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अनदर इज द potential energy u1 plus k1, potential energy kinetic energy is equal to u2 plus k2, this is also conserved. The conservation term they will happen, angular momentum conserve और ये रिजल्ट भी आएगा। This thing also can be used, तो conservation of energy is applied, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, suppose in the same way I take one more question related this way. Suppose I say there are two rings, अब आप देखेंगे, मान लो मैंने एक रिंग ऐसे ले लिया, it has the radius r1 carrying current I1. On the axis I put a second ring, and second ring is like this, and say it is radius is current is I2 and radius is R2, say like this, ये दोनों ऐसे आ गए ना, कैपिटल R2 में लिख देता हूँ इन द पैटर्न। अब आप मान लेते हैं, से द डिस्टेंस, दिस इज द ओरिजिन, से 0 0 0 and here it is, the value is 0 y and 0, they are like this, both are having the current flow in the same direction, they are lying in the xz plane, I can say this is the x-axis, this is the y-axis and z-axis like this ना, ऐसे xz plane में both the rings are lying and their axes are on the y-axis, their separation is y. So what can be the force of interaction between them? इनके बीच का force of interaction भी मैं देख सकता हूँ। What I will see, I will find the field due to this here. इसकी वजह से बड़े रिंग से यहाँ पे फील्ड देख लूंगा, तो फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ रिंग आप निकाल सकते हो, I1 का B1 ना, तो वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट I1 r स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स r square plus x square to the power 3/2, it is a B1 due to this ring here. ये B1 की वैल्यू मिल गई, B1 की वैल्यू मिल गई, आई कैन गेट द पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा, माइनस ऑफ m2 into B1 और cos 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इन द सेम प्लेन, तो बोथ इसका जो इफ आई सी द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड हियर इट इज B1 in this direction and m2 is also in the same direction,
If I go like this, I will get arrangement this way, minus m2 b1 this. तो आप देखो u की वैल्यू क्या आ गई, माइनस m2 इज i2 इंटू पाई r2 स्क्वायर ना, पाई r2 स्क्वायर, कैपिटल R2 स्क्वायर आई एम राइटिंग, करेक्ट, पाई R2 स्क्वायर इंटू b1 इज म्यू नॉट i1 r1 स्क्वायर आई से ओवर 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 ना, इंटू cos 0 डिग्री, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन इफ यू सी बिटवीन देम, दैट इज माइनस i1 i2 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू आई एम गेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज और देख लो, आई कैन एज्यूम फॉर, जो x लिखा है एक्चुअली में y है, दिस टर्म इज y, तो हियर यू कन्वर्ट इनटू y, जनरल टर्म यहाँ पे x को आप y मान लेना, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपको x को y कन्वर्ट करते हुए यू कैन गेट, इफ आई राइट दिस, तो व्हाट आई विल राइट, अगेन द पोटेंशियल एनर्जी आई विल राइट माइनस i1 i2 इंटू पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स, जस्ट सी इट इज r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये पोटेंशियल एनर्जी, दिस वैल्यू यू कैन गेट, करेक्ट। अब थोड़ा ध्यान देना, वंस वी हैव दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल द रिजल्ट्स आई हैव डिफाइंड, इसको फर्दर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां से मैं फोर्स को डिफाइन करूंगा, थोड़ा देखिएगा हाउ डू आई गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग दिस एनर्जी फंक्शन ऑफ y में मैं देख लिया, बिकॉज बोथ द रिंग्स हैव द कॉमन एक्सिस अलोंग y एक्सिस। नाउ सी, मैं सेम पेज पे इसको ले जा रहा हूं, तो व्हाट आई विल राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर you take y much greater than r, either of the radii r1 और r2, दोनों से बड़े हैं, r1 एंड r2। तो y much greater than r पे u की वैल्यू क्या आ गई, u वैल्यू माइनस i1 i2 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स y क्यूब, द रिजल्ट इज दिस। ठीक है जी, ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये रिजल्ट आपको मिल गया। नाउ इफ आई हैव दिस टर्म, व्हाट कुड बी द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, ये तो y की वैल्यू आ गई और ये माइनस m डॉट b आपको मिल गया। इफ आई फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम, तो मैं जानता हूँ क्या करूँगा, माइनस du बाई dy। आई कैन ऑल्सो फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दोनों में क्या फोर्स लग रहा होगा फंक्शन ऑफ y में निकाल सकता हूँ। इफ आई डिफरेंशिएट दिस टर्म, तो dy dt ऑफ y क्यूब ना, तो वो आप टर्म दे सकते हो, तो dy dt ऑफ y क्यूब अगर करते हो आप, तो क्या होगा -3 और y टू द पावर 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा i1 i2 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर ओवर जस्ट सी बाई 2 और ये y टू द पावर 4। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द y टू द पावर 4 बिटवीन द टू मैग्नेटिक डाइपोल्स। ये रिजल्ट आप यहाँ पे बना रहे हो ना। अगर आपको याद होगा दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स आता है 6p1 p2 बाई r टू द पावर 4, उसी जैसा गैप ये भी निकाल सकता हूं मैं, इसको भी उस तरह से ले जा सकता हूं, बिकॉज आई कैन राइट दिस मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के लिए ना, ये पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर से मैं कर लूंगा। तो आई कैन राइट इज दैट्स m1 इक्वल टू i1 इंटू पाई r1 स्क्वायर, m2 आप लिखिए i2 इंटू पाई r2 स्क्वायर। इफ यू राइट बोथ द वैल्यूज m1 m2, तो यू कैन फाइंड आउट द सेम फार्मूला 6p1 p2 r स्क्वायर जो था। तो यहाँ भी हम फोर्स अगर निकालूंगा, तो आई विल सी दैट इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 ओवर y to the power 4. So this force of interaction we can see the torque, force,
एनर्जी, एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड फॉर एनी टू करंट कैरिंग लूप्स। ये रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। वन मोर थिंग एसोसिएटेड हियर इज your moving coil galvanometer, that torque, how it is based, and this torque they are relating with the function angle theta. तो मूविंग कॉइल galvanometer को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, हाउ द टॉर्क वी हैव डन, उसी कॉन्सेप्ट पे रिजल्ट आ जाएगा। ऑल इट वाज फॉर मैटिक फील्ड, मैटिक मोमेंट एंड एसोसिएटेड टर्म्स। तो इस तरह से दिस चैप्टर इज गेटिंग कंप्लीट फॉर मैटिक फोर्स एंड ऑल। थैंक यू।